Good morning, fifth class. Today we are going to do the chapter of EVS. So, I have asked you to read, I guess, chapter number 21, but we are not going to do this chapter right now, as there will be few experiments which we'll be doing in this chapter, and I would like to take up this chapter in the class itself. So, once the pollution breaks are over, and we all be in the class, and then I'll be taking this chapter number 21. So we'll be doing this in the class, and this chapter needs a lot of experiments, so we'll be doing some fun activities with this chapter. So today I'm going to start with a new chapter of your EVS, and the name of this chapter is mosquitoes and malaria. So this chapter is about mosquitoes and malaria. As the name says, we all know what are mosquitoes and what diseases they spread. The one which is very prevalent these days is now dengue, and it is a very deadly disease. Many people have died this year due to dengue, and it has spread like anything this time. So let us start with the chapter and let us read that how mosquitoes are born and how they are harmful and how we can avoid their breeding. So do you know about malaria fever? How does it spread? अब आपको मलेरिया फीवर के बारे में पता है कि वो स्प्रेड कैसे होता है? Earlier people thought that malaria and many other diseases were caused by the wrath of deities or due to some bad omen. पहले के ज़माने में लोग सोचते थे जब भी कोई बीमारी होती थी ना, चिकन पॉक्स हो गया, बोलते थे बड़ी माता, छोटी माता, और हैज़ा हो गया, many other diseases like malaria. So they used to think कि ये जो है ना, भगवान ने बहुत श्राप दिया है या कोई बैड ओमेन हो गया उसकी वजह से हो रहा है. Wrath मतलब anger of God. All right. But later it was discovered that these diseases used to spread due to germs. But later on they got to know, when scientists started working on it, then they got to know that these diseases are spread due to germs. Germs की वजह से spread होती है. And how do germs grow? Germs कैसे grow होते हैं? If you'll not take bath for like 2 or 3 days, your body will start stinking. Or if you'll not wash your clothes and wear dirty clothes again and again, then germs will start breeding on them. So germs always grow on unhygienic environment. जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे germs आते हैं. Look at the following picture. Now there are two houses. This house is very clean and it's very beautiful house, very clean house. And this house is very dirty. Water is stagnant here. पानी रुका हुआ है. यहाँ पे गंदगी है. मच्छर मक्खियाँ सब घूम रहे हैं. खाना गिरा हुआ है. There is stool of animals and there is पुराना कबाड़ का सामान यहाँ रखा हुआ है. So इन सब में साफ जगह कौन सी है? ये वाली साफ जगह जहाँ पे कोई खड़ा हुआ पानी नहीं है, जहाँ पे कोई गंदगी नहीं है. वेयर इज इन दिस प्लेस इट्स लॉट ऑफ डर्ट हेयर. सो जो जर्म्स है वो इस वाली जगह पे बनेंगे, इस वाली जगह पे birth नहीं लेंगे. In the first picture you can find a neat and clean house. The surroundings are clean. In the second picture you will find a house surrounded by unhygienic condition like filth, garbage, stagnant drains with filth and dirt. Mosquitoes and flies are flying over it. और mosquitoes और flies कहाँ पे? यहाँ पे fly कर रहे हैं. Garbage and filth, stagnant water is the growing place for germs. Insects like mosquitoes, flies carries these diseases causing germs and cause डिजीज. अब क्या होता है, जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे जर्म्स आ जाते हैं, और वो जर्म्स को जो है ना, ये मक्खियाँ और ये लोग जब यहाँ जाके बैठते हैं उन जर्म्स को अपने साथ कैरी करते हैं और जगह पे ट्रांसमिट करते हैं. यू कैन फाइंड मॉस्किटोज ओवर एनी प्लेस वेयर वाटर इज स्टैंडिंग. They breed there. You can see the small larva of mosquito on any source of stagnant water. Now, as dengue is spreading these days like anything, तो अब क्या होता है, after the rainy season, गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्ट सेइंग्स एंड एमसीडी से लोग आते हैं, कहीं पानी तो नहीं खड़ा हुआ, कूलर के अंदर पानी तो नहीं खड़ा हुआ है, टैंक पूरी तरह से कवर्ड है आपका कि नहीं है, सड़कों पे कहीं पानी तो नहीं खड़ा हुआ. क्योंकि पानी जब बहुत देर तक स्टैंडिंग रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, स्टैग्नेंट वाटर मीन्स खड़ा हुआ पानी, तो वहाँ पे जो है ना मॉस्किटोज जो है वो ब्रीड करने लगते हैं, उनका लार्वा आने लगता है. सो एक हफ्ते के अंदर पानी हर जगह से बदल देना चाहिए और कहीं पे भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए. मॉस्किटोज कैरी द जर्म्स ऑफ डिजीज एंड व्हेन बाइट अ हेल्दी पर्सन इट इंजेक्ट्स द जर्म्स इन इट. और मॉस्किटो क्या करते हैं, जर्म्स कैरी करते हैं, और जब किसी को बाइट करते हैं तो वो जर्म्स उसको पास ऑन कर देते हैं. दैट पर्सन फॉल्स इल. When a mosquito bite an ill person, it sucks the germs along with blood. When it again bites any other healthy person, it transmits the germs in his blood and cause him to fall ill. तो मॉस्किटो क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, ब्लड सक करते हुए वो हमें जर्म्स भी पास ऑन
कर देते हैं. इन दिस वे डिजीजेज आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स. और ऐसे ही डिजीजेस से जो डिजीजेस हैं उनसे जो इंसेक्ट्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, और डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होती है इंसेक्ट से, मॉस्किटोज से, फ्लाइज से. आप क्या देखते हो, फ्लाइज और मॉस्किटोज कहाँ बैठते हैं? दे सिट ऑन डर्टी प्लेसेस, गंदी जगह पे जाके बैठते हैं, वहां से जर्म्स कैरी करते हैं. मार्केट में जाते हो, खाना होता है रखा हुआ, मार्केट का खाना जो रखा होता है, बाजार में जाते हो, स्वीट शॉप्स होती है या और कोई शॉप्स हो गई, तो वो उस खाने को अगर ढका नहीं हुआ है, उस खाने पे जाके बैठ जाते हैं. एंड व्हेन यू विल ईट दैट फूड यू विल गेट सिक, बिकॉज उस खाने में जर्म्स आ जाते हैं. They suck blood from human body and transmit diseases. The body of a mosquito can be divided into 3 main parts. अब मॉस्किटो की बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. ये मॉस्किटो की बॉडी और 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये इसका एब्डोमेन है, इसका स्टमक है, ये इसका हेड है और ये इसका थ्रॉक्स है. हेड, थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन. मॉस्किटो हैज 2 eyes on both side of the head. द माउथ ऑफ द मॉस्किटो इज लाइक अ ट्यूब. इसका माउथ जो है वो ट्यूब की तरह है जहां से ये ब्लड सक करता है. मॉस्किटो सक्स ब्लड विद दिस ट्यूब लाइक माउथ. देर आर 3 पेयर ऑफ लेग्स ऑन द थ्रॉक्स अबव एंड द थ्रॉक्स देर इज अ पेयर ऑफ विंग. यहाँ पे विंग होते हैं और थ्रॉक्स के ऊपर क्या है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होता है उसकी मॉस्किटो की. नाउ वील स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो. अ फीमेल मॉस्किटो लेज एग. फीमेल मॉस्किटो जो है वो एग ले करती है, एंड शी कैन लेज एग्स अबाउट 200 to 300 एग्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. तो सोचो कितने मच्छर पैदा करता है एक मच्छर. 200 से 300 एग्स वो वाटर के सरफेस पे ले कर सकता है. द एग डेवलप्स इनटू अ लार्वा विच इज लाइक वेरी स्मॉल वर्म. और एग से क्या बनता है, लार्वा बनता है. लार्वा डेवलप्स इनटू अ प्यूपा. लार्वा जो है वो प्यूपा में डेवलप होता है. प्यूपा जो है वो मॉस्किटो में कन्वर्ट होता है, और 8 से 10 दिन लगते हैं उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए. इसका मतलब जो मॉस्किटो है वो 2 वीक्स की लाइफ होती है उसकी, 2 वीक्स तक जिंदा रहता है. तो ये एग दिया है मॉस्किटो ने, एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से एडल्ट एमर्ज हुआ, और उससे यहाँ पे मॉस्किटो पूरा कंप्लीट हो गया. सो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो इज फॉर 2 वीक्स. 2 वीक्स की लाइफ साइकिल होती है. मॉस्किटो स्प्रेड्स डेंजरस एंड फेटल डिजीजेस. फेटल मतलब डेडली डिजीजेस जिनसे आप मर भी सकते हो, लाइक मलेरिया, डेंगी, येलो फीवर एंड चिकन गुनिया. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया. और जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज होते हैं वो मलेरिया को स्प्रेड करते हैं. In 1857, Sir Ronald Ross discovered that female Anopheles mosquito spread malaria. He was awarded with Nobel Prize for his discovery. So this man, he discovered that the female mosquito, it spreads malaria, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट. कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हो आप घर में? एक तो हम घर में ऑल आउट और वो मॉस्किटो रेपेलेंट्स जलाते हैं, कछुआ छाप हो गया वो जलाते हैं, गुड नाइट हो गई, वी बर्न दैट, राइट. और या हम घर में हिट का स्प्रे करते हैं, हम अपने खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं शाम के टाइम में ताकि मच्छर अंदर ना घुसे. वी शुड नॉट बी कीपिंग एनी स्टेगनेंट वाटर इन आवर हाउस, एंड वी शुड सी कि हमारे टैंक्स, वाटर कूलर्स, जो कूलर है हमारे या घर के आसपास कहीं खड़ा हुआ पानी ना हो, राइट. और जब सोते हैं हम तो या तो हम मॉस्किटो एंटीसेप्टिक लगा के सोते हैं, मॉस्किटो क्रीम लगा के सोते हैं, या फिर हम नेट लगा के सोते हैं अपने आसपास. सो दीज आर दी वेज थ्रू विच वी कैन अवॉइड मॉस्किटो बाइट. We should sleep in closed doors. The windows should be covered with wire mesh so that mosquitoes cannot enter the room. We should use mosquito beds while sleeping. It is the best and cheapest way of avoiding mosquito beds, जैसे net लगा के. We use mosquito repellents of different kind for whole night. They do repel mosquitoes but they can be harmful for our health. अब जो हम वो कछुआ छाप हो गई ना और जो ऑल आउट हो गई वो लगाते हैं, ये मॉस्किटो को तो भगा देती है, लेकिन हम इसको इनहेल करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. तो इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. वी कैन ऑल्सो रिपेल द मॉस्किटोज बाय बर्निंग ड्राइड नीम लीव्स. नाउ दिस इज द वेरी वंडरफुल एंड वेरी हेल्दी मेथड ऑफ किलिंग द मॉस्किटोज और रिपेलिंग देम बाय ड्राइंग द नीम लीव्स. नीम लीव्स को जला के जो है ना, ड्राई नीम लीव्स को जला के जो है वो मॉस्किटो को भगाया जा सकता है और वो हमारे लिए भी हार्मफुल नहीं होता. We can also use spray of mosquitoes repellent or kerosene to draw away the mosquitoes and other insects. This is also used. Rubbing mustard oil on the body can also save us from mosquito bite. तो
जैसे मॉस्किटो की क्रीम आती है ओडोमॉस, उसकी जगह पे आप मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हो, फिर आपको मच्छर नहीं काट सकता. Moreover, we should not allow the mosquitoes to breed in our surroundings. The very important thing is that we should हमें पता चल जाता है कि जब मॉनसून आया है, मॉनसून के बाद मॉस्किटोज ब्रीड करना शुरू कर देते हैं. तो हमें कहीं पे भी खड़ा पानी नहीं रखना चाहिए. एवरी 7 days पानी को अगर आप चेंज करते रहोगे तो मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पाएगा वहां पे, राइट. ऐसे ही कहीं घर के आसपास हो, घर के छत पे हो, घर के अंदर हो, कहीं पे भी आपके खड़ा पानी नहीं होना चाहिए. कहीं पानी है तो उसको आप ढक के रखो. वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड वी शुड clean our coolers every week, right? So this is about the mosquitoes. What kind of diseases they spread? They spread diseases like malaria, dengue, yellow fever, chikungunya. And who discovered that female mosquito spreads malaria? Sir Ronald Ross in 1857 he discovered that. And we have learned there are many ways to avoid mosquito bites and how we can get rid of mosquitoes. And we also learned about the life cycle of the mosquito and the body part of the mosquito. Now read this chapter once again and then try the question answers.